Lok Sabha had in fact voted Mahua Moitra out after the lower house of the parliament had tabled the ethics committee report which had recommended her expulsion. She has been expelled as a member of parliament from the lower house of India's parliament. Meanwhile, of course, a political storm is raging over this issue. Bharatiya Janata Party leaders have in fact lauded this decision. Let's take a look. है कि लोकतंत्र में एक सांसद के रूप में get questions from the public, from citizens. There is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the ethics committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in parliament. There is no लगातार लोकतंत्र में एक सांसद के रूप में महुआ के द्वारा जिस तरह का अपराध किया गया, उससे स्पष्ट झलकता है कि विदेशी शक्तियों के हाथों में इन लोगों ने लोकतंत्र दे दिया। दुबई से एक्सेस होना यह स्पष्ट दिखलाता है कि टीएमसी का भी मानसिकता क्या है। ममता दीदी को कार्रवाई करनी चाहिए, ममता दीदी ने कार्रवाई नहीं किया, लेकिन लोकतंत्र है और संसद के द्वारा जिस तरह की कार्रवाई हुई उससे स्पष्ट झलकता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ रही है। This was about to happen, we were sure that this would happen because anybody, whoever it is not above the law. And Mahua Moitra, she has played with the security of the nation. And still she doesn't have any shame. She has been trying to confuse the matter and saying that, because she was questioning against Adani and Modi ji, that's why she was removed. No, not at all. You can question about anybody, but you have played with the security of the nation by sharing your password with somebody who is not even a citizen of India at not once, not twice, but 51 times. Mahua Moitra was my esteemed colleague in the Lok Sabha and she has been expelled from the Lok Sabha. This saddens me too. But having said that, let me tell you that it's not a question of being a man or a woman. It's a question of being a responsible parliamentarian. We cannot behave in a manner which is unbecoming of a parliamentarian. There are certain ethical standards to which we need to conform. Mahua Moitra's conduct, unfortunately, was unethical by nature. Then, of course, you've heard Bharatiya Janata Party leaders laud this decision. But meanwhile, reactions are also coming in from opposition leaders who have claimed that this has taken place because of, quote-unquote, politics of vendetta. Let's, in fact, take a look at these reactions. Clear, नया पार्लियामेंट, नया कानून, आवाज कोई भी अदानी के खिलाफ बात करेगा, उसका आवाज बंद कर दिया जाएगा। इसका क्लियर कट एग्जाम्पल है महुआ मोइत्रा वाला इंसिडेंट। महुआ मोइत्रा का बोलने नहीं दिया पार्लियामेंट में और महुआ मोइत्रा का आरोप का ऊपर उनका क्लियर करने के लिए मौका नहीं दिया पार्लियामेंट में। और कमिटी में किसने कंप्लेंट किया, वो उद्योगपति, उसका बुलाया ही नहीं। और किसने कितना पैसा दिया, किसने कहां से पैसा है, कितना पैसा किसका पास है, उसका बारे में कोई भी सबूत भी नहीं मिला। They wouldn't allow her to speak. So the very idea behind expulsion is quite sure that, we are quite sure that they were very unnerved. They're very scared of her because she raises issues for which they are very uncomfortable. So BJP, anything you speak against BJP and you are in trouble. Is that the signal that they are given, that if you heckle us, if BJP is heckled or questioned, then it can go to such that you will be expelled from the house? So today what we saw was, even for that matter, Mr. Heer Nandani. Why was he not even called to depose before the ethics committee? So it is all very grey.
and non-transparent and unjust, and all steps were taken that you will try to curb the power of a Mahila Sangsad. A history to happen in the new Parliament House. This is a history which has been created by the central government and more particularly the members of the Parliament. What we have seen today, we have seen that the Parliament, by raising only their voices, have actually expelled a woman, single woman MP, Mahua Moitra. देखिए, जिस तरीके से महुआ मोइत्रा जी को इन्होंने एक्सपेल किया है, पूरी जो प्रक्रिया है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। जो भी व्यक्ति केंद्र सरकार के खिलाफ प्रखर होकर आवाज उठाता है या उठाती है, उनको किसी न किसी प्रकार से ये षड्यंत्र करके फंसा लेते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण आपको संजय सिंह जी के केस में भी दिख जाएगा। महुआ मोइत्रा जी भी उसी प्रखर तरीके से लोकसभा में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और जो जनता से संबंधित मुद्दे हैं उनको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाती थी। जिस भी दिन से ये मुद्दा शुरू हुआ, उस दिन से इस देश में किसी के मन में ये संदेह नहीं था कि इसका अंत में परिणाम क्या आने वाला है। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आज सदन के अंदर बृजभूषण शरण सिंह हैं, पर महुआ मोइत्रा जी को निष्कासित कर दिया गया है। ये भाजपा की एक सोची समझी साजिश है कि कोई भी अगर लोगों की आवाज बनता है तो उसको कैसे दबाया जाए। आप देखिए, संजय सिंह जी और महुआ मोइत्रा जी दो ऐसी मुखर आवाजें थी जो लगातार ये डिमांड कर रही थी कि अदानी के ऊपर जो मैसिव करप्शन के एलिगेशंस लगे हैं उसकी जांच हो। तो ये भाजपा की एक कोशिश है ये आवाजों को दबाने की, जिसमें वो सफल नहीं होगी। हम महुआ मोइत्रा जी के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या महुआ मोइत्रा को जो गवाह थे उनको क्रॉस एग्जामिन करने का हक नहीं था? क्या हमारे कानून में नेचुरल जस्टिस ये नहीं कहता कि अगर कोई आरोप करता है, कोई गवाही देता है तो उसे क्रॉस एग्जामिन किया जाए कि सच गवाही है, झूठ गवाही है, उसका क्या उद्देश्य है गवाही देने का? वो मौका नहीं दिया गया। और बहुमत के आधार पर एथिक्स कमेटी में भाजपा के सांसद थे, उन्होंने उनको मौका ना देते हुए, पूरी बात भी नहीं हुई थी, थोड़ी देर के लिए आई और जो अभद्रता से जो उनके सलूक हुआ, जो गलत तरीके से प्रश्न पूछे गए, चली गई वहां से। तो उन्होंने फिर उनको कमेटी ने रिपोर्ट दी कि इनको निष्कासित करना चाहिए और आज वो निष्कासित हो गई है। लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है? देखिए, Then, of course, we've seen leaders from the INDIA bloc backing Mahua Moitra. Remember, viewers, yesterday, Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, had also released a statement where she had also claimed that this was political vendetta. Meanwhile, even as reactions are coming in from across the political spectrum, my colleague Santosh Kumar is still with us on the broadcast. Over to you, Santosh. What updates can you give us as far as the political storm over the expulsion of Mahua Moitra as a member of parliament is concerned? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से जो, खासकर ऑपोजिशन की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो एक तरह से अपनी तरह से जायज है। लेकिन आप देखिए, फैक्ट्स को देखें तो महुआ मोइत्रा का केस और पॉलिटिकल स्टेटमेंट दोनों में काफी डिफरेंस है। फैक्ट ये है कि महुआ मोइत्रा ने अपने लॉगिन पोर्टल पोस्ट शेयर किया, जो कि अलाउड नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ये प्रिविलेज होता है एक पार्लियामेंटेरियन के लिए कि वो किस तरह के सवाल पूछना चाहता है, किस तरह के सवाल पूछना चाहती है। लेकिन महुआ मोइत्रा ने यहां गलती की। महुआ मोइत्रा का मामला सिंपल है और उन्होंने लॉगिन पोर्टल पोस्ट शेयर किया, वो भी देश के बाहर से, दुबई से 51 टाइम्स लॉगिन हुआ है। ये फैक्ट्स है। अब इसके आगे जांच हो रही थी, इसके आगे एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, एथिक्स कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी महुआ मोइत्रा के एक्सपल्शन के लिए, और उसके बाद पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए टाइम दिया गया और डिस्कशन के बाद ये फैसला लिया गया कि महुआ मोइत्रा ने अनएथिकल वर्क किया है और इसके लिए उसे रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि देखिए, आप एक पार्लियामेंटेरियन हैं, आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को, वहां आपके एथिक्स की बहुत जरूरत होती है। काफी सारी चीजें, देखिए, नियम नहीं होता है लेकिन आपसे एथिक्स की उम्मीद की जाती है। महुआ मोइत्रा ने यहां गलती की और इसी गलती की उसको सजा एक्सपल्सन के तौर पर दिया गया है।
अब रही बात कि इस महुआ मोइत्रा के केस से ऑपोजिशन ने क्या टेकअवे लेके गए। भले महुआ मोइत्रा का एक्सपल्सन हुआ, लेकिन जो दूरी इंडिया गठबंधन में दिख रही थी, खासकर कांग्रेस और टीएमसी के बीच, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, जो हाल के दिनों में 3 राज्यों में चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी जिस तरह से अलग हो रही थी, ऑपोजिशन बिल्कुल बिखरा बिखरा सा दिख रहा था। लेकिन महुआ मोइत्रा के केस में एक्सपल्सन के बाद ऑपोजिशन एक साथ इकट्ठा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इससे ये कह सकते हैं कि महुआ मोइत्रा का एक्सपल्सन पर विक्टिम कार्ड अब ऑपोजिशन की तरफ से खेला जा रहा है, और ये विक्टिम कार्ड महुआ को कितना फायदा पहुंचाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इससे इंडिया गठबंधन को एक मजबूती जरूर मिली है, सबको एक साथ आने के लिए एक प्लेटफॉर्म के लिए एक इशू मिल गया है, और इस इशू से ये एक विक्टिम कार्ड, एक वुमेन कार्ड के रूप में इसको देखा जा रहा है। अब देखना पड़ेगा इसका पॉलिटिकल माइलेज कितना कुछ अब इंडिया गठबंधन लेके जाता है, लेकिन दोनों ही मामले बिल्कुल डिफरेंट है। महुआ का केस का एक्सपल्सन एक उनके जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स के आधार पे पार्लियामेंट ने किया है। जी Indeed, as you've mentioned it, it has in fact brought together the INDIA bloc. Remember viewers, there were visuals in fact coming out yesterday of the INDIA bloc leaders walking out of the parliament after the Lok Sabha had voted to expel Mahua Moitra. There was a lot of debate that had taken place in the parliament itself. Meanwhile, of course, you can see visuals of Mahua Moitra's very first statement that she had made after she was expelled. In fact, she had talked to the media, and at that point of time she had in fact stated, and I quote, that the ethics committee has no power to expel. This is the beginning of the Bharatiya Janata Party's end. She's further stated yesterday itself, and I quote, that the kangaroo court has shown haste and abuse of due process and has harassed a single woman member of parliament into shutting her into submission. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.